विमेंस कैसे हैं आप? पिछले कुछ सालों से ना मैंने एक रिचुअल सा बना रखा है। मैं आज मार्च को आता हूँ, सडनली पॉप करता हूँ आपकी लाइफ में, अपने थॉट्स शेयर करता हूँ कि क्यों आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन गायब हो जाता हूँ। लेकिन इस बार ना कुछ डिफरेंट सा फील हुआ मुझे कि चलो यार इस बार कुछ और करते हैं। सो आई डिसाइडेड कि इस बार बोलने से पहले आई विल लिसन इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू व्हाट आई थिंक ऑफ वुमेन्स। मैं ना सुनना चाहता था कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। सो मैंने अपने बेहद करीब कुछ फीमेल्स से या फिर उन लोगों से जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ 2 क्वेश्चंस पूछे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग अ वुमन, एंड सेकंड इज व्हाट इज वन थिंग यू विश पीपल अंडरस्टूड अबाउट वुमेन्स। एंड आंसर्स आई रिसीव्ड कुछ भी सिंपल नहीं था। कुछ बहुत खूबसूरत थे, कुछ बहुत पेनफुल थे, कुछ कंफ्यूजिंग थे, और कुछ आंसर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया समाज पर देखने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। एक विमेन ने बोला कि बीइंग अ वुमन मीन्स appearing soft, calm and sensitive on the outside while carrying incredible strength within. While another woman said me कि being a woman means balancing compassion, responsibilities and dreams while still inspiring the people around you. किसी ने इसे विमेन हिट को एक रोलर कोस्टर की तरह डिस्क्राइब किया कि समथिंग ब्यूटीफुल, ओवरवेलमिंग, enthusiastic, exhausting but still intense या फिर always intense. Another voice reminded me of something very true कि many girls grow up being called the pride of their homes, ये घर की लक्ष्मी है, लेकिन but expected कि to sacrifice the parts of themselves for everyone else. Some spoke about strength, some spoke about emotion, some spoke about responsibilities, some spoke about something जिसके बारे में हम इनफ बातें नहीं करते, that is safety, the constant awareness of boundaries या फिर the uncomfortable moments, the feeling that the world wasn't always designed with them in mind. One woman said me something that really stayed in my mind. She said that whenever she steps outside of her home, right, her mind starts asking questions ki, is my outfit okay? Is someone looking at me strangely? Am I even safe? Will something I say or do will be misunderstood? Will someone report it to my family? Uh, will something about will something that I do will affect my future? Will it affect my opportunities? Will it affect my marriage? एंड ये आंसर सुनते टाइम ना एक स्ट्रेंज थॉट मेरे माइंड को क्रॉस कर गई कि मैंने ये क्वेश्चन तो पूछ लिया, मैंने सही भी किया है क्या? क्योंकि आई वॉज लिटरली नॉट एबल टू होल्ड द वेट जो कुछ मेरे को सुनने को मिला है. इट वॉज रियली, I can't express. I just wish if I was there with all of them and I could have given them a hug and I could have told them and or made sure कि everything is okay. But what am I doing, right? मतलब what am I even, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि suddenly I was hearing about something that's real but I never had any experience about that. I mean, something that I had never really seen before, and honestly I don't even know if knowing this will change anything for you all. I have no idea. Like, I don't know if I'll be able to make any difference, but still I want to say this from the deepest place in my heart. Okay, एक कवि का हृदय बोल रहा है. एक लाचारी है मेरे बोलने में कि यार किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं. ये उन सब से सवाल है जो इस सोसाइटी का हिस्सा है कि जहाँ पर एक एंटायर जेंडर जो है वो ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जा रहा है कि उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है अबाउट सिंपली एग्जिस्टिंग. मतलब व्हाट आर वी डूइंग, राइट? व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड आर वी creating where the kindest, most compassionate people have to constantly question about their own space in society. And honestly, sometimes I feel like saying shame on all of us for limiting the potential of the beautiful, the kindest creature among us. Because जितना मैंने सुना उतना मुझे रियलाइज़ हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें रियलाइज़ हुई कि women are not asking for sympathy. Not a single one of them asked me for this. Instead, they were saying opposite. They didn't ask for special treatment. They didn't ask to be placed on pedestal. What they asked for was surprisingly simple. That is normal treatment. Just the freedom to live, to study, to work, to dream, to make decisions
विदाउट कॉन्स्टेंटली फीलिंग लाइक दे नीड परमिशन फ्रॉम द वर्ल्ड। ये बात इतना मुझे हर्ट करके गई, या फिर इतना मुझे चुभी है कि दे रियली नीड परमिशन फॉर सिंपली एग्जिस्टिंग। आई कांट एक्सप्रेस। जिस व्यक्ति ने मुझे ये बताया है, मैं रोया नहीं हूँ, मतलब मेरी आत्मा रोई है, मेरी आंसू नहीं निकले, बट मेरा दिल रोया है। वन वुमन टोल्ड मी समथिंग जिसने मेरा सोचने का नज़रिया शायद थोड़ा बदला। शी सेड दैट शी डजंट वांट टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन, नॉट नेगेटिवली, नॉट पॉजिटिवली, शी सिंपली वांट्स टू बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। शी सेड समथिंग जो शायद मेरे साथ हमेशा रहने वाली है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर फॉर सेइंग दिस थिंग कि शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, even if it's a small, even it affects only a few people, but still she want to contribute, and she want to be she want that contribution to be seen as her work. Okay, मतलब वो एक छाप छोड़ना चाहती है इस समाज पे, and she don't want it as something extraordinary just because she is a woman. And that made me realize कि many women are not fighting for admiration, मतलब उन्हें admire नहीं होना है, ठीक है। They are fighting to be seen normally, not as fragile, not as special, not as exceptions, just as equal human beings. अच्छा, मुझे नहीं पता मैं कितना अटक रहा हूँ इसमें। ओके, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग एंड दिस इज़ लाइक अराउंड 7th और 8th टेक, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इमोशंस एंड मैं उन्हें एक जगह नहीं ला सक रहा हूँ, बट फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज भी मैनी वीमेन हैव टू फाइट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ दैट others receive naturally for being belonging to another gender, and that is something we rarely talk about, right? Because when we hear stories of successful women, what we usually hear is about their struggles or how hard it was, or how many barriers they had to break. But the real question is, why should basic opportunities require a struggle at all? मतलब किसी को पढ़ना है, किसी को अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए उन्हें स्ट्रगल क्यों करना है? जस्ट बिकॉज दे विल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर। एडिंग दिस पार्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भूल गया था वो उसमें बताना कि मैंने ना एक स्टोरी लिखी थी ऑन द सेम थॉट्स जो आपने मुझे शेयर करे। ओके, जो स्ट्रगल्स आपने शेयर किए, एंड जाकर देखना उस स्टोरी को, उस स्टोरी को ज़रूर पढ़ना सुनना इस वीडियो के बाद या बाद में कभी भी। एंड यू नो वन थिंग, सी दैट मून इज लाइटिंग अप एवरीथिंग अराउंड। ओके, आई जस्ट बच गया मैं गिरते गिरते। या सो जिस तरह से चांद ना हर तरफ रोशनी फैला रहा है, आप भी हमारी ज़िंदगी में वैसे ही हो कि मुझे नहीं पता कितना रोशनी दिख रही होगी, बट स्टिल यू आर जस्ट लाइक दिस मून इन आवर लाइव्स। जब भी अंधेरा होता है, जब भी हम भटक रहे होते हैं, you are the guiding star or the guiding moon lighting up everything. Okay, continue. And that's where the real problem lies. We talk about awareness, we talk about empowerment, we talk about organizing programs, and we give speeches, we create content. But the real problem is lack of conversation. The real problem is the mindset, द थॉट प्रोसेस। मतलब ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों से पूछा है, एंड फ्यू वर लाइक दे कांट इवन आंसर दिस, और दे से लाइक मैं बहुत कच्ची हूँ, मैं नहीं बोल सकती इस बारे में। कई इससे भागी है, कई बोलती थी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। हाँ, कई ने आकर बोला, एंड देन आई एम हियर। एक और सच्चाई है कि जो डीप रूटेड थिंकिंग है ना, वो बदलना इतना आसान नहीं है, राइट? मतलब बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्राई करना बंद कर देंगे, बिकॉज व्हेन अ वुमन रिसीव्स जेन्युइन सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, शी डजंट जस्ट थ्राइव्स, शी फ्लाइज। मैंने देखा है, एंड आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई फील, एंड मे बी दैट्स द बिगेस्ट लेसन हियर। Women are not asking the world for something extraordinary. They are simply asking to be treated as equal human being. No unnecessary sympathy, no overprotection, no restrictions, just equality, just opportunity. Because at the end of the day, why should we even reach a point where we have to ask ourselves, is this a man or is this a woman? And therefore the rule must be different. मतलब क्यों? I don't get it. Someone shared a really
क्या बोलूँ मैं, बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन शेयर की किसी ने, बहुत ही प्राइवेट मोमेंट शेयर किया किसी ने. सबसे पहले तो आई रियली फेल्ट गुड कि दे शेयर्ड इट. एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि व्हाई आर दे बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे आर अ वुमेन. I literally can't express. मतलब maybe our role as a society is not to define women. Maybe our role is not to celebrate them once a year on just a single day. Maybe our role is simply to stand beside them or behind them, to listen more, to respect more, to trust more. Because when women are respected, I've seen this, when women are respected, families grows. When women feel safe, community becomes healthier. Okay. अब देखो वर्ल्ड में जो भी अच्छे कंट्रीज़ है वहाँ पर वेमेंस की क्या स्टेटस है. एंड इट इज़ बिकॉज कंट्रीज़ अच्छी इसीलिए क्योंकि वहाँ वेमेन का स्टेटस वैसा है. हम लोग ना बस बोलने के हैं कि हमारे यहाँ तो देवी माना जाता है. ओके, इस पर मैं नहीं जाऊँगा. ओके, सो बिफोर आई एंड दिस, ओके, देयर इज समथिंग आई वांट टू से. I cannot promise on behalf of the world, I cannot promise on behalf of the society or anyone else, but I can promise something on my own behalf. Okay, if there ever comes a moment when you feel unheard, when you feel like you just need someone to sit beside you and listen, या फिर okay like that, consider this fool to be yours. I'm just a message away. Okay, I may not have always, I may always not have the perfect solutions or answers. I may not always know the right advice because I'm also learning. But I promise you this thing: I will listen without judging, without evaluating, without turning your feelings into arguments or lecture. वो सब मैं नहीं करूँगा. ओके, क्योंकि मैंने क्या सीखा है कि बिकॉज समटाइम प्रॉब्लम्स जो है ना वो यूं गायब नहीं होती, लेकिन जब आप किसी से उसके बारे में बात कर रहे होते हो, आप किसी को बता रहे होते हो, शेयर कर रहे होते हो, तो वो हल्की होने लगती है और बेटर होती है. एंड आई प्रॉमिस यू समथिंग एल्स टू. ओके, कि आई ट्राई टू बी बेटर टू द वुमेन अराउंड मी, क्योंकि मैं अब हर एक के पास नहीं जा सकता, बट हाँ जो मेरे आसपास है, आई ट्राई टू बी गुड टू देम. ओके, टू ट्रीट देम विद द सेम रिस्पेक्ट, लव एंड एडमिरेशन that I'm talking about today right now. I'll make sure men around me learn from me to treat women like I do, because I think respect should not exist only in speeches. It should exist in our behavior, right? And honestly, to be honest, I don't know ये वीडियो कितना लंबा होगा, बट मैं कितना ही बोल लूँ इस टॉपिक पर. 7 साल 8 साल होने को है मुझे, मैं अभी भी इनफ नहीं बोल पाया हूँ. मैं और इस बार तो द एक्सपीरियंस वॉज लिटरली डिफरेंट. जब मैंने जाना कि व्हाट यू ऑल आर एग्जैक्टली गोइंग थ्रू, इट लिटरली ब्रोक माई हार्ट. सो आई सिंपली वॉन्टेड टू से वन थिंग: थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू द वुमेन हु रेज्ड अस, टू द वुमेन हु सपोर्ट अस, टू द वुमेन हु इंस्पायर अस, एंड टू द वुमेन हु चैलेंज अस टू ग्रो. यू मेक लाइफ मोर ब्यूटिफुल इन वेज जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता. मेरी लाइफ इनफ नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. ऑनेस्टली, यू मेक माई लाइफ सो मच मोर ब्यूटिफुल देन आई कुड एवर फुली एक्सप्रेस. अब एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब ये क्वेश्चंस पूछ रहा था ना, तो व्हाट आई फेल्ट इज सम पीपल वे आर रनिंग अवे, राइट? डोंट डू इट यार. मतलब लाइफ इज़ रियली ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ वर्थ लिविंग एवरी मोमेंट. बहुत ब्यूटीफुल है. एंड ये बात वो बोल रहा है जो कि आज से कुछ महीनों पहले गिव अप कर चुका था सब कुछ पे. अगर आज से कुछ महीने पहले मुझसे आप बात कर रहे होते दैन यू वुड बी सेइंग ये क्या इंसान है, ही इज़ जस्ट नथिंग, ही इज़ डेड फ्रॉम इनसाइड. बट हाँ, वन फाइन मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू वेक अप विद अ डिफरेंस इन मी. आई डिसाइडेड टू से नो मोर टू दैट पास्ट, ओके, ट्रॉमा एंड व्हाटएवर जो भी था. एंड आई डिसाइडेड टू spill out everything, and from then to now, मैं क्या feel करता हूँ, life is really beautiful, it's worth living, every moment is worth living. Sharing, it's worth sharing with your loved ones, with those whom you love. So please बात करो, ऐसे इग्नोर मत करो, भागो मत, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा. आप कब तक भागोगे, थक जाओगे. Instead, spot the elephant in the room and just make it go away. just करके भगा दो उसको. ओके, सो मुझे नहीं पता मेरे वर्ड्स
मैं क्या कुछ बोला मुझे नहीं पता, मैं बस बोला हूँ। छठवीं या सातवीं वाला टेक था ये मेरा। एंड आई होप मैं कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा ना गया हूँ, आई जस्ट होप। सो कमेंट डाउन क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या करना चाहिए। और मैं सच में चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु शुड बी रिमेंबर्ड एज अ पर्सन who listens or who cares for their loved ones, who feels like home। और मैं ये तभी कर पाऊँगा मैं जब आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहूँगा, या फिर आप लोगों से सीख पाऊँगा। ओके, बिकॉज ये ना, ये फेमिनिन क्वालिटीज़ ही है, ये मैस्कुलिनिटी नहीं है। मैस्कुलिनिटी विल बी सेइंग कि गो, आई डोंट गिव अ शिट। दैट वुड बी मैस्कुलिनिटी। फेमिनिन इज समथिंग दैट केयर्स एंड दैट नरिशेस, and I really want to nurture it inside me too. I really want to do this thing. Okay, so thank you so much for staying with me. I again literally can't express, because the women I love, I am not with her yet, but she is making me perfect. The women whom I respect, whom I admire, are making me perfect. And you all are behind this person, whoever this person is, right here, right? You all are behind my mother, my sister, my cousins, my friends. You all are behind me. So thank you so much for existing with us. Thank you so much for giving us the valuable lessons. And मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन वर्ड्स। सो ओके, आई गेस एंड करता हूँ मैं बहुत बोर कर चुका हूँ, राइट? सो ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लेना, भले ही मुझसे पैसे ले लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।